books, Professor KVS Madaan. It is indeed a privilege for Prastuti Academy to host Professor Madaan in this glorious event, which I'm sure is going to be a memorable one for all of you. Prastuti Academy is a new platform. We started our journey last year with a few established scholars as our faculty. We have been offering rigorous course with regular mock test, course materials, and doubt clearing classes with the aim of providing our students the best opportunity and guidance to crack NET set exams. We have been able to guide many of our students to achieve their desired goal, and our success rate in the last NET exam is remarkable. You all know that we regularly organize special lectures and classes where the students get the opportunity to directly hear from and interact with the renowned experts in the field. The special lectures are meant to motivate our students and inspire them to set their goal and preparation guideline in a proper way right from the beginning. For today's special lecture, we have got amongst ourselves Professor KVS Madaan. Being the author of several best-selling books, Professor Madaan needs no introduction. We all have read his book widely, which have become a must-read for all the NET set aspirants. Nevertheless, to formally introduce Professor Madaan to you, let me say a few words very briefly. Professor Madaan is a graduate of Punjab University, Chandigarh, and the Haryana School of Business in Hisar with a PG degree in management. The author has a vast experience of teaching with top-notch institutes in Punjab and Himachal. His expertise lies in writing books in both Hindi and English that are both very user-friendly and reader-friendly. Writing books in both English and Hindi with equal proficiency stands merit. Simple words are used no matter whatever the topic is, teaching, research, math, ICT, or environment, whether general or technical, he has always taken the same uniform approach. That applies in the questions. The way of putting questions is also proficient. Every facet has a futuristic approach, forward-looking, that enhances the confidence and determination of NET aspirants. In light of the impending exam that will begin tomorrow, the motivational speech will facilitate us to become successful researchers and professors. I hope from today's session, you all learn how to prepare for first paper from Professor Madaan himself. Before going to him, I would like to request Sarthak Laha, our eminent faculty in history, to say a few words about our course. Sarthak? Yeah. Am I audible? Yes, yes, you are. Yeah. Yeah. So, thank you, Ritik sir, for a wonderful introduction. I just want to welcome you again for the second time. I also want to welcome you, Sir KVS sir. Sir is here. We are very much excited. So, before going to the lecture, I just want to say something about our journey and our courses. Uh, Prastuti Academy, our journey started in 2022 August, and from the very first batch, we have 3 NET qualified students and 4 WB SET qualified students. Okay, so we just started with history, and this year we are going to introduce so many courses like geography, general paper, sociology, political science, education, Sanskrit, English, okay, at very minimal prices. Okay, so I just don't want to waste any time. We just want to hear from KVS Madaan sir. Sir will deliver his lecture on bilingual mode, English and Hindi. After his lecture, you can ask your all doubts and all questions or all queries. You can ask your doubts in the comment box as well. So, sir, please.
Hello, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You are audible, sir. Yes, yes, Sir, please definitely. start. We can hear you. I think you have to put on the camera. Yeah. Uh, Camera. uh, okay. Please activate our camera, Krishnandu. Krishnandu, please give permission to activate our camera. Yeah. Thank you. So participants, you can also on your camera. Yes, sir. Thank you You very are much. visible. Thank you, sir. And thank you for this nice introduction. Ki we can start on a very positive note. Ki we have to face the next exam. And this can be taken in the form of the career also. Ki in case ki you try to enter into teaching, especially in the form of a professor, and that too into a university, and you want to become a researcher also, so this can be taken as a wonderful career opportunity. तो इसमें सबका benefit होता है कि like कि we are contributing towards the society also. So that way I think कि this opportunity must be taken with a keen interest so that we can contribute towards society. So that way, in case ki we try to look at the whole scene, ki what kind of contribution is being made by education in towards the society. So that way, it can be taken as a national service. तो इसको हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोफेशन है इसमें ये होता है कि दिस कैन बी लिंक विद द इंटरनल पर्सनैलिटी, दिस कैन बी लिंक विद द एक्सटर्नल पर्सनैलिटी. तो यू विल गेट ए कम्युनिकेशन फेस आल्सो कि यू आर कम्युनिकेटिंग विद सो मेनी पीपल, and that way it can be taken as the say wonderful opportunity कि इसको हमें सीरियसली लेके चलना चाहिए. तो जब मैं ये कहता हूँ कि इट शुड बी टेकन सीरियसली, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमने अपना करियर स्टार्ट करना है, कि सपोज कि यू आर डूइंग से ग्रेजुएशन, कि जैसे बीए या बीकॉम है या लाइकवाइज है, तो यू आर से इनटू दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, तो उसमें पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपने अपना जो करियर है वो डिसाइड कर लेना है कि दैट शुड बी टेकन एज कि हमें इसमें जो टाइमली डिसीजन मेकिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि जब भी हमने टीचिंग है दिस इज टू बी टेकन एज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन. तो ये मेरी खुद की अपनी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पीपल डिसाइड अबाउट द टीचिंग करियर एट ए वेरी लेट स्टेज. जब उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होती है देन दे थिंक कि दे हैव टू बिकम से टीचर्स. तो मेरे को ये लगता है कि जब भी आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ करियर. तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि बीकॉम है या लाइक वैसा है कि +1 है या +2 है, या इन केस की वी टॉक अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो, तो उसमें जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं कि वी नीड टू बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो वी ट्राई टू गो कि वी वांट टू स्कोर से मैक्सिमम मार्क्स. उसमें ये होता है कि जो पेपर 1 है दैट इज बेसिकली इग्नोर्ड कि वी थिंक कि वी विल टेक केयर ऑफ दिस एट अ लेटर स्टेज. तो दैट वे वी कैन से टू इट कि इन केस की यू डिसाइड अबाउट योर करियर कि आफ्टर द से एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन कि आप ये डिसाइड कर लेते हो कि यू हैव टू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो पेपर 1 है इट शुड बी फोकस्ड अपॉन. तो ये मतलब मेरा एक सॉर्ट ऑफ मैसेज है टू एवरीवन कि इट शुड नॉट बी टेकन एज एट ए लास्ट रिजॉर्ट. कि हम ये मान के चलते हैं कि जो पेपर 1 है इसके जो मार्क्स हैं दे आर बीइंग से इंटीग्रेटेड इनटू द फाइनल लिस्ट, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. तो इसमें ये नहीं होता है कि वी हैव टू लुक ओनली एट द बेसिक कंसेप्ट्स एंड दैट विल सर्व द पर्पस. उसमें ये है कि जो पेपर 1 है इसमें जो एग्जाम कंडक्ट होता है इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे लॉजिकल रीजनिंग है या जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है या डाटा इंटरप्रिटेशन है, इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द रिसर्च आल्सो, या इसमें एक टॉपिक होता है कि जिसको हम आईसीटी कहते हैं. तो दैट वे वी कैन लुक एट कि जब भी हम सीन देख के चलते हैं तो वी कैन फाइंड कि दिस एग्जाम कैन एक्चुअली बी वेरी टफ, तो इट शुड बी टेकन सीरियसली. तो उस केस में क्या होता है कि वंस वी डिसाइड टू बिकम से प्रोफेसर और रिसर्चर
कि आपका जो अल्टीमेट जो मोटिवेशन क्या होनी चाहिए कि आपको जो जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना है। तो मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप जो पेपर बना है इसको आपने एक ड्यू कंसिडरेशन देनी है कि सो दैट यू आर एबल टू क्वालिफाई द जेआरएफ एग्जाम। उसमें ये होता है कि यू विल गेट से फाइनेंशियली रिवार्डेड आल्सो, कि उसमें आपको एक फाइनेंशियल रिवार्ड मिलता है। तो दैट वे इट कैन बी टेकन एज अ सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो रिवार्ड आपको मिलता है दिस कैन बी वेरी गुड इन टर्म्स कि एक तो आपकी जो स्टूडेंट की लाइफ है वो कंटिन्यू हो जाती है कि इन केस की यू आर एबल टू यू हैव डन से पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देयर आफ्टर यू वांट टू गो फॉर द रिसर्च, कि आपका जो जेआरएफ का एग्जाम है वो क्लियर हो चुका है। तो उससे आपको एक बहुत बेनिफिट मिलता है कि यू आर डायरेक्टली से मूविंग इनटू द नेक्स्ट प्रोफेशन विदाउट एनी स्ट्रगल। तो उसमें आपका जो स्ट्रगल है वो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस होती हैं उसमें ही, मतलब दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ। कि इसमें लाइकवाइज कि जो पेपर वन है, तो मैंने आई हैव सीन से सो मेनी स्टूडेंट who really say कि we have missed the exam after say for 2 marks 3 marks 5 marks likewise। तो ऐसी सिचुएशन है उसको हमने अवॉइड करना है। एंड इसमें आपकी पॉसिबिलिटी ये भी नहीं होनी चाहिए कि मिनिमम मार्क्स है इसमें 60 होने चाहिए 50 होने चाहिए लाइकवाइज है। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दोस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आल्सो कि यू हैव टू सी कि यू हैव टू अचीव से मैक्सिमम। तो उसमें जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया होता है तो उसमें क्या होता है कि वी नैरो डाउन on the certain topics only, कि we are going to finish 5-6 topics and we will be able to qualify the exam। इसमें ये होता है कि जो पेपर वन है इसमें जो पोटेंशियलिटी क्या होती है दैट इज ऑन द हायर साइड। तो अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दिस कैन बी टेकन, कि इसमें पोटेंशियल है वो हाई होता है। तो इन केस की आई कैन ट्राई टू टेल यू कि आपका जो सब्जेक्ट है सपोज की दैट इज गोइंग टू बी कॉमर्स, तो कॉमर्स की या हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप +1 में भी करते हो, +2 में भी करते हो, बीए में भी करते हो, बीकॉम में भी करते हो, देन यू डू द सेम थिंग इन द पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो। तो उसमें ऑलरेडी आपको पता है होता है कि इसका सिलेबस कितना है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लाइकवाइज। तो यू डेवलप ए काइंड ऑफ थीम फॉर दोस टॉपिक्स। लेकिन ट्रबल कहाँ पे आती है पेपर वन में, कि पेपर वन में कि यू विल फाइंड कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यू हैव बीन एबल टू डू से पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू हैव टू लिटरली लुक एट कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग है वो टॉपिक क्या होता है, या इसमें जो मैथमेटिक्स है या आईसीटी के टॉपिक हैं, तो हाउ टू डील विद से दोस टॉपिक्स। तो दैट कैन रियली टर्न इनटू ए ट्रबल, क्योंकि मेरी अपनी ये अजम्पशन है कि जब +1 है +2 है या ग्रेजुएशन है उसमें क्या होता है कि यू ऑलरेडी हैव द लॉट ऑफ इनोवेटिवनेस। तो अगर आप इसको मान के चलते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ये पोस्ट ग्रेजुएशन तो यू आर गोइंग टू टच अप ऑन दिस थिंग्स, तो इट कैन रियली बिकम ए चैलेंज। तो इसलिए इसकी अपनी जो टाइमली कंप्लीशन है ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट मस्ट बी डन। तो ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपने अपना जो टीचिंग करियर है उसको आपने डिसाइड करना है कि यू आर गोइंग टू बिकम ए वंडरफुल टीचर, वंडरफुल प्रोफेसर, एंड यू हैव टू बिकम से गुड कम्युनिकेटर। तो ये जो लाइफ के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं दे मस्ट बी ब्रॉट आउट। तो ये एक सॉर्ट ऑफ की कंपैरिजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी पॉजिटिव करियर अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपने उस सेंस में इसको लेके चलना है। देन आई गेट्स ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि सर इसकी हम प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट करें। तो इसका आंसर आपका यही है कि आपने जब भी आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो रही है तो यू मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी है, देन वी कैन टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ द एनवायरनमेंट आल्सो, हायर एजुकेशन है। तो यू हैव टू बी से इंफॉर्मेशन रेलिवेंट, कि मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन आती है थ्रू न्यूज़पेपर आती है या इन केस की वी ट्राई टू लुक एट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो यू शुड बी से कॉन्शियस अबाउट दोस थिंग्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे गवर्नमेंट है उसकी कौन सी पॉलिसीज हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट दोस थिंग्स। तो आपने इसको एक ट्रबल मान के नहीं करना है कि लॉजिकल रीजनिंग है इसको हमने करना है, इसमें 3 या 5 क्वेश्चन आने सपोज कि जो टफ होते हैं, 3 क्वेश्चन भी टफ होते हैं तो 2 क्वेश्चंस दे कैन बी अटेम्प्टेड। तो ये जो 3 4 5 क्वेश्चंस होते हैं कि इन केस की आई टॉक अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो वी गेट इनटू सम काइंड ऑफ द ट्रबल। तो इसमें पॉजिटिव आपके लिए यही है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इन केस की यू टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स या लॉजिकल रीजनिंग है या आईसीटी है, तो इनकी जो प्रिपरेशन है दैट मस्ट बी स्टार्टेड ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट एट द राइट टाइम इन द लाइफ। तो ये मेरा एक वैसे आपको मैसेज है कि इस एग्जाम को हमें बहुत सीरियसली लेके चलना है कि इसकी प्रिपरेशन है वो टाइमली जो है उसको हम स्टार्ट कर पाए,
तो इससे आपको ये मिलता है कि आपको ये लगता है कि आपने जैसे कि एमए आपकी कंप्लीट है, तो उस केस में आपके लिए काफी इजी हो जाता है। अगर आप एमए के फर्स्ट ईयर में हो, स्टिल यू कैन अपियर इन द एग्जाम, कि जैसे आपकी एमकॉम चल रही है तो स्टिल यू कैन अपियर इन द एग्जाम। तो इसमें आपको 3 साल का एक टाइम पीरियड मिलता है कि आपकी जो जेआरएफ की डिग्री होती है उसके लिए एक टाइम स्पेन है, दैट इज ऑफ द 3 इयर्स। तो आपको एक ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड मिल जाता है कि मान लो एमए फर्स्ट ईयर में यू हैव बीन एबल टू कंप्लीट से यू हैव बीन एबल टू क्वालिफाई जेआरएफ एग्जाम, तो उसका आपको ऑटोमेटिक जो बेनिफिट है वो 3 ईयर तक मिलेगा। तो इसमें ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका एंड हुआ तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ये वो हमने करना है। तो ये आपकी लाइफ में जो क्वेश्चन मार्क्स हैं दे मस्ट बी डेल्ट इन द एट द अर्लीस्ट स्टेज इटसेल्फ। तो इससे आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिलता है। सेकंड ये है कि जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं, कि जैसे आपने इसका एग्जाम देना है, नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है, तो उसमें जो पेपर वन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, दिस टॉपिक्स आर अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन डायरेक्टली नहीं आते कई बार। इन केस की यू हैव टू अपेयर इन द बैंकिंग एग्जाम, उसमें नहीं आते। लेकिन जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, आईसीटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इन्वायरमेंट है, देन वी कैन टॉक अबाउट सम पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट आल्सो। तो यहाँ पे जितने भी एस्पेक्ट आपने कवर करने हैं, यू कैन टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आल्सो, कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है दे आर आस्क्ड इन द डिफरेंट एग्जाम। इसमें हमें एक्सेप्शन कहाँ मिलती है कि टीचिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये रेगुलर एग्जाम में नहीं आते, तो स्टिल यू आर गेटिंग से बेनिफिटेड इन द नंबर ऑफ वेज। तो ये आपको इसको एग्जाम को आपने बहुत सीरियसली लेके चलना है। इसमें ये भी नहीं है कि यू हैव टू पुट से सो मेनी आवर्स फॉर द पेपर वन। इसमें ये होता है कि डेली आपकी जो डिस्कशन है 1 और 2 आवर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1 और 2 आवर, कि अगर आप ग्रेजुएशन के अराउंड इसकी जो प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट करते हो, तो इवन दैट काइंड ऑफ स्टडी कैन हेल्प यू इन ए वेरी बिग मैनर। और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है कि यू हैव टू बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, की सब्जेक्ट है उसको भी हमने करना है, एंड देन यू हैव टू लुक at the paper say one in a very new manner, कि इसके जो टॉपिक्स हैं you have to do all the topics। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपका जो नेट का एग्जाम है वो तो क्वालिफाई हो गया, बट यू मे नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द जेआरएफ एग्जाम, उसमें ट्रबल आती है। तो इसके लिए जो टाइमली प्रिपरेशन है दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपने इसको सीरियसली लेके चलना है कि इसमें जो कंसिस्टेंसी होती है दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इसकी हमने स्टडी की तो we are doing say certain topics, after that we go here there likewise, तो उसमें जो लाइफ की जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी है वो जो है दैट मस्ट बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। तो इसमें जो आपके परसिस्टेंट एफर्ट्स होते हैं तो दे आर गोइंग टू प्ले ए वेरी वेरी बिग रोल, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलता है। तो ये एस्पेक्ट है, ये आपने माइंड में रख के चलने हैं। इसमें ये भी होता है कि हम कौन सा टॉपिक पहले करें, कौन सा टॉपिक पहले बाद में करें लाइकवाइज। तो यू कैन लुक एट दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि अगर आपको ये लगता है कि कोई टॉपिक इजी है, सपोज कि यू फाइंड की टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी जनरल टॉपिक। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो वहां से स्टार्ट हो सकती है। या इन केस की यू फील कि इसमें मैथमेटिक्स है तो उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो यू वांट टू बिगिन योर स्टडी फ्रॉम द मैथमेटिक्स, तो यू कैन गो अहेड विद दोस थिंग्स। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा टॉपिक आपने पहले किया बाद में किया, ये आपकी अपनी एक कॉन्वीनियंस होती है। तो अकॉर्डिंगली यू शुड ट्राई टू मूव। लेकिन ये कॉन्वीनियंस कब होती है, जब आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो ग्रेजुएशन में आप इसको स्टार्ट कर देते हो, या एट द मोस्ट क्या होगा कि जैसे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो स्टार्ट हुई, तो इन द बिगनिंग इटसेल्फ तो यू आर गोइंग टू डील विद दोस थिंग्स। तो इसकी जो प्लानिंग है ये अपने अपने लेवल पे ही करनी होती है। तो इसमें इसमें ये भी होता है कि आपने जो इजी टॉपिक है वो पहले कर लिए, बट एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग इन द एग्जाम तो आपको ये लगता है कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है या लॉजिकल रीजनिंग है उसमें एंशिएंट भी आ गया, तो हाउ टू डील विद ऑल दोस टॉपिक्स। तो इसमें क्या होता है कि इजी या टफ टॉपिक्स हैं उनको अपने प्रिपेयर करना है। इस टाइप की पॉसिबिलिटी भी बनती है कि आपका एक टॉपिक इजी है, सेकंड टफ है, फिर इजी है, फिर टफ है लाइकवाइज। तो यू कैन ट्राई टू मूव इन दैट मैनर आल्सो। इसमें ये होता है कि अगर पेपर वन है उसमें आपका टॉपिक है वो इजी है, तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी भी बनती है कि जैसे कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, से दैट इज बीइंग डन से इन द हिस्ट्री या दैट इज बीइंग डन इन से पॉलिटिकल साइंस, तो उसका कोई टफ टॉपिक है तो दैट कैन बी अटेम्प्टेड। कि इसमें मतलब साइमल्टेनियसली ये नहीं है कि पेपर वन है उसके टॉपिक है तो दे आर गोइंग टू बी टफ, जो पेपर टू है उसका टॉपिक भी टफ है।
तो यू कैन मेक से सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट कि आपका जो टॉपिक्स हैं दे मस्ट बी कवर्ड। और इसमें ब्यूटी ये है कि आपका जो एग्जाम है उसमें भी 10 यूनिट्स है, इसमें भी 10 यूनिट्स हैं। तो इन केस की यू आर गोइंग टू प्लान द थिंग्स इन ए मैनर, प्रॉपर मैनर, तो इससे आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो काफी इजी हो जाती है। तो अगेन से इट शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। तो ये एस्पेक्ट है अपनी माइंड में रख के चलना है। तो दिस हैपेंस इन माय केस आल्सो कि जैसे बुक है आई एम गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा नहीं है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं दे हैव टू बी डन फर्स्ट एंड देन आई विल पिक द इजी टॉपिक्स या वाइस वर्सा। तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट टॉपिक है दिस कैन बी टफ, सेकंड टॉपिक दिस कैन बी इजी। तो दिस कैन बी टेकन एज अ लाइफ टाइम अप्रोच आल्सो। तो ये एस्पेक्ट है। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कि आपकी जो लाइफ है उसमें जो प्रोग्रेशन है दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपने आपकी जो हेल्थ है उसका भी आपने एक प्रॉपर जो ध्यान रखना है कि यू हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ द मेडिटेशन कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट्स है। अगेन मतलब दिस कैन नॉट बी लिंक्ड विद एनी काइंड ऑफ द रिलीजन। तो उसमें ये होता है कि जैसे कि दिस कैन बी टेकन टोटली इन द सेकुलर फॉर्म कि मेडिटेशन क्या होती है कि यू आर गोइंग टू ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जिसको हम कहते हैं कि डीप मेडिटेशन है। तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है कि यू आर एबल टू फोकस ऑन द सर्टन एस्पेक्ट्स इन ए वेरी ब्यूटीफुल मैनर। तो ये एस्पेक्ट है, ये भी आप माइंड में रख के चलो कि हमने अपनी जो लाइफ है इट मस्ट बी से लिव्ड इन ए वेरी प्रॉपर मैनर कि लाइफ में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपने मूवी देखनी है या लाइक कि यू हैव टू गो फॉर समथिंग समथिंग। तो जितनी भी एस्पेक्ट है उनको आपने कवर करना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन एक कंसिस्टेंसी इन द स्टडी। तो इसका आपको एक बेनिफिट मिलता है एंड दिस कैन बी टेकन एज ए लाइफ टाइम अप्रोच। एट द सेम टाइम यू मस्ट टेक से अटमोस्ट केयर ऑफ हेल्थ। तो उसके लिए क्या एस्पेक्ट आपने अडॉप्ट करने हैं, तो यू कैन सी टू दो थिंग्स कि आपने मतलब मेडिटेशन दिस कैन बी टेकन एज वन ऑफ द एग्जांपल्स ओनली कि जब भी आपने एग्जाम भी देने जाना है तो एट दैट टाइम आल्सो कि मेडिटेशन इज गोइंग टू हेल्प यू कि लाइक वाइज की इन केस की यू हैव टू अपेयर इन सम एग्जाम। तो उसमें यू डोंट हैव टू, मैं थोड़ा सा आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि इन केस की यू हैव टू अपेयर इन द एग्जाम, तो उसमें इस टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है कि यू आर नॉट टॉकिंग टू सो मेनी पीपल और उसमें आपको अपनी जो पीस ऑफ माइंड है दैट मस्ट बी मेंटेन्ड। तो ये मेरे को काफी लोग पूछते हैं इन केस की आई टॉक अबाउट से 15-20 डेज अगो। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं कि सर हमारी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए। तो आई ट्राई टू गिव से दिस काइंड ऑफ मैसेज आल्सो कि यू नीड टू टेक से गुड केयर ऑफ योर हेल्थ ताकि उसमें जो लाइफ है उसमें जो पॉजिटिविटी है दैट कैन बी मेंटेन। तो दैट वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफ में ट्रबल सबको आती हैं, कॉम्प्लिकेशन सबकी लाइफ में है। तो I could not see any person in the ways ki in case ki I look at the students ki I can see ki some students and they are without any trouble. तो everybody has some kind of trouble this way or that way. तो ये एस्पेक्ट है, ये आपने काफी इसको एक पॉजिटिव मैनर में लेके चलना है। एंड आपका जो सोशल मीडिया है तो दैट मस्ट नॉट बी बिकम ए डिस्ट्रैक्शन कि वो उसको अपने पॉजिटिवली लेके चलना है कि उसको मतलब सोशल मीडिया है तो वी कैन नॉट लिव इन ए सोसाइटी विदाउट सोशल मीडिया क्योंकि उसकी क्या है कि हमें हैबिचुएशन हो चुकी है। बट इसमें भी क्या होता है कि जो बैलेंसिंग ऑफ द लाइफ इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसका कितना यूज करना है। अगेन से दैट इज अगेन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सोशल मीडिया है उसको हमने डिस्ट्रैक्शन मान के नहीं चलना। दिस शुड बी टेकन इन ए पॉजिटिव मैनर कि लेकिन आपको ये बैलेंस आपने खुद ही डिसाइड करना है कि उसका कितना यूटिलाइजेशन है वो आप करना चाहते हो। तो ये एक मेरे जनरल से मैसेज है आप लोगों को कि इनमें से कुछ मैसेज हैं दे कैन बी अडॉप्टेड एंड यू कैन सी द डिफरेंस आल्सो कि इससे आपको ये लगेगा कि आपकी जो लाइफ है दिस विल बिकम से पॉजिटिव। तो लाइफ में क्या होता है कि आपने एक जनरल सा जो एटीट्यूड है ना वो आपने अडॉप्ट करके चलना है। तो वी कैन सी टू इट कि जो एवरीडे कैन बी टेकन एज एग्जाम कि लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशन है एवरी टाइम वी हैव टू टेक से सम काइंड ऑफ डिसीजन। तो लाइफ में जो आपका एग्जाम है दिस कैन बी टेकन ऑन द कॉन्टिन्यूअस बेसिस कि डेली वीकली लाइकवाइज तो यू हैव टू टेक से सम काइंड ऑफ द डिसीजन। इन द सेम वे वी कैन से कि आपका जो नेट का एग्जाम है या जेआरएफ का एग्जाम है तो दिस कैन बी टेकन एज वन ऑफ द एग्जाम। तो ये एग्जाम है लेकिन इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो अपने मेंटेन करके चलनी है क्योंकि ये जो एग्जाम है वो इमीडिएटली तो होने वाला है नहीं। इट विल टेक प्लेस आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर और सो। तो ये इस टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। तो उसमें आपने अपना जो लाइफ है उसकी जो डिग्निटी है उसमें क्या आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए तो उसके बारे में जो प्रॉपर प्लानिंग है दैट मस्ट बी डन। तो इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए
बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ यू आर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो आप में मेच्योरिटी लेवल ऑलरेडी है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड द वे। तो उसमें लाइकवाइज की जो कस्टमाइजेशन है, अगेन दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जनरल सा आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन केस की आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, कि जैसे पेपर 1 है उस पर बुक लिखी मैंने लाइकवाइज, तो उसमें ये होता है कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो दिस कैन बी योर फ्यूचर। तो उसमें ये होता है कि उसमें कुछ एंशिएंट कंसेप्ट हैं या फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ, तो दीज हैव बीन ट्राई टू लिंक विद द से स्वयं मूक्स एक्सेट्रा। तो ये भी एस्पेक्ट है, इनको अपने लिंकेज की फॉर्म में लेके चलना है। तो इनको हम लिंक कैसे करें, इसमें जो मेथड्स हैं अगेन से दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च है, दिस कैन बी करियर फॉर सो मेनी पीपल कि दे वांट टू बिकम से रिसर्चर, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलती है कि रिसर्च है। जो ये बुक है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जैसे पियर्सन की है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च है उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ, कि यू हैव टू फोकस ऑन द नल हाइपोथेसिस। मैं जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद ये वर्ड उन लोगों ने सुना या नहीं ना सुना। तो वी हैव टू टेक दस थिंग्स इन अ वेरी प्रैग्मेटिक मैनर, इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर, इसलिए मैंने ये वाला वर्ड यूज किया है कि यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दोस एस्पेक्ट। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन है, तो दिस कैन बी टेकन as a representation of your subjective knowledge, again it is important. Then we talk about the communication, again this can be linked with the unit 1 जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, कि जो लेक्चर्स है, मतलब जो आपके थ्योरेटिकल जो नॉलेज है या बैकअप है, उसको अपने क्लास में जो है वो कैसे आपने उसको डिलीवर करना है। देन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपका इतना टफ टॉपिक नहीं होता, तो वी कैन सी टू इट कि आपका जो लेवल है इसमें एग्जाम की टर्म्स में वो 6, 7, 8 लेवल का ही है। उसमें ये नहीं है कि यू आर गोइंग इनटू अननेसेसरी एवरीथिंग, तो वो उसमें इस टाइप की पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि दिस कैन बी टेकन एज समवट टफ, कि इस चैप्टर को लिखने के लिए आई हैव टू टेक से लॉट ऑफ एफर्ट्स, हैव टू कंसल्ट से सो मेनी पीपल। लेकिन मेरी ये एक आपस में मतलब एक अंडरस्टैंडिंग थी विद माई सेल्फ कि आई हैव टू ऑफर से बेस्ट मटेरियल टू द स्टूडेंट, कि जो एग्जाम के ओरिएंटेड होना चाहिए, कि वी आर नॉट गोइंग फॉर एनीथिंग हैंकी पैंकी लाइकवाइज। So we have to do this thing in a very efficient manner. Then we can see to it कि जो unit 6 है, this is linked with the say लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें हमने काफी एस्पेक्ट है वो हिंदी में भी दिए हुए हैं। जो लेटेस्ट बुक है उसमें क्या होता है कि जो हिंदी की बुक है तो वी ट्राई टू गिव से इंग्लिश कंसेप्ट, लेकिन इसमें क्या होता है कि इंग्लिश की बुक है उसमें भी हमने काफी इंट्रोडक्शन की हुई है कि स्टूडेंट्स है दे मस्ट गेट सम आइडिया अबाउट देयर हिंदी ट्रांसलेशंस आल्सो। देन वी डिस्कस की व्हाट इज अ डाटा इंटरप्रिटेशन। अगेन कि जब भी आपने ये टॉपिक अटेम्प्ट करना है, कि इन केस की आई ट्राई टू स्विच ओवर टू मैथमेटिक्स अगेन, तो मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है परसेंटेज का, सेकंड इज ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड थर्ड टॉपिक इज दैट ऑफ द एवरेजेस। तो ये 3 टॉपिक आपने करने हैं कि इन केस की आई ट्राई टू लुक एट द होल कंसेप्ट, कि आपको 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, एक तो मान लो मैं एज्यूम करता हूँ कि यूजुअली हो जाएगा 5th यूनिट में, कि दिस कैन बी डन इन ए वेरी इजी मैनर, तो 2 क्वेश्चंस वहां से हैं। इन केस की आई टॉक अबाउट द डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में 4 to 5 क्वेश्चन हैं, तो दे आर गोइंग टू बी लिंक्ड विद दिस टॉपिक्स। फर्स्ट इज परसेंटेज, सेकंड इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड थर्ड इज एवरेज। तो ये 3 टॉपिक आपने ये वाले करने हैं, मतलब 3 टॉपिक्स आपने ये करने हैं। इससे आपके 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होने वाले हैं, 4 to 5 आई कैन से टू इट। देन 2 क्वेश्चन उसके हो गए, तो वी कैन फोकस ऑन द 6 to 7 क्वेश्चंस इन केस की वी आर गुड एट मैथमेटिक्स। तो आपने ये नहीं मान के चलना है कि मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी, मतलब इसको हम स्किप भी कर दें तो यू कैन मतलब गो अवे गो विद द एग्जाम। तो उसमें आपको ट्रबल किस चीज की आने वाली है कि अगर आपने ये टॉपिक स्किप किया तो आपको ये 4 या 5 क्वेश्चन है यूनिट 7 में से भी स्किप करने पड़ेंगे, या मैं मान के चलता हूँ कि 3 क्वेश्चंस हैं उस टाइप के स्किप होंगे। तो दैट वे मैथमेटिक्स है, इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। लेकिन जो मैथमेटिक्स है इसमें अपने परफेक्शन है वो भी गेन नहीं करनी, टू बी ऑन द सेफर साइड। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट अल्टीमेटली, कि आपका मैथमेटिक्स में कितना इंटरेस्ट है। तो आपने एक बेसिक लेवल है वो आपने इसका अडॉप्ट करना है। तो दैट वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं इवन दे आर नॉट गोइंग टू बी लिंक्ड विद द डायरेक्ट फार्मूला, कि उसमें एक फार्मूला आ गया एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो वी कैन सी टू इट
कि सिंगल क्वेश्चन में 3 फार्मूला वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कि एक सिंगल क्वेश्चन है उसमें 3 ऑप्शन है, तो दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड कैन बी ऑन द डिस्टेंस एंड एजुकेशन, डिस्टेंस एंड लाइकवाइज, ओके, टाइमिंग, एंड थर्ड क्वेश्चन है वो किससे लिंक्ड होगा, दिस कैन बी लिंक्ड विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लो 3 टाइप के क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं इन द सेम क्वेश्चन, मतलब 3 जो फॉर्मूला है आपको अडॉप्ट करने हैं, तो दैट वे यू हैव टू बी वेरी क्विक आल्सो, कि आपकी जो इनोवेटिवनेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने इस टाइप की टेम्पटेशन करनी है क्वेश्चन की, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी इनोवेटिव। तो ये एस्पेक्ट है, ये आपने हमेशा अडॉप्ट करके चलना है दैट वे। देन आईसीडी, तो आईसीडी क्या होता है कि वी कैन सी कि दिस हैज बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, तो वी यूज टू लुक एट सो मेनी थिंग्स। इसमें जो मेमोरी का कंसेप्ट है दैट मस्ट बी डन इन अ वेरी गुड मैनर, कि उसमें बैंडविड्थ ये वो सब कुछ है, कि कितनी टाइप की मेमोरीज होती है, कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो होती है, लाइकवाइज है, तो ये टॉपिक आपने करना है। देन वी कैन ट्राई टू लुक एट द इंटरनेट, कि इंटरनेट है वो देखने में बड़ा स्मॉल टॉपिक लगता है कि एवरीबॉडी इज यूजिंग इंटरनेट, उसको हमने फिर डिटेल में देके चलना है कि इंटरनेट है उसके कौन से एस्पेक्ट हैं, दे मस्ट बी कवर्ड। लाइकवाइज की वी कैन टॉक अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आल्सो, कौन सी टर्म्स है वो यूज होती हैं, इन केस की क्रिप्टो करेंसी है उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दैट टॉपिक हैज बिकम्स रियली वेरी इनोवेटिव। तो ये एस्पेक्ट आपने करने हैं, हमने अपनी बुक है उसमें भी अडॉप्ट किया हुआ है, कि उसमें जो ग्लोसरी है दैट हैज बीन गिवन एट द एंड, लेकिन क्या होता है कि वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, कि बेसिक एस्पेक्ट है वो हमने करने हैं, सेकंड वी आर मूविंग टू मेमोरी एक्सेट्रा, and then we talk about the internet likewise, so we try to cover each and everything, and my expectation from the Prastuti is of the same level, कि even they are going to contribute towards everything, कि जो students हैं उनके कौन से doubts हैं, how they can be dealt with, तो ये मेरी expectations है कि जब भी आपने इस टाइप का वेंचर वो स्टार्ट किया हुआ है, तो यू हैव टू गो इनटू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द डिटेल। तो लेकिन इस पे ये एस्पेक्ट होता है कि वी हैव टू सी कि जितनी भी नॉलेज हमने गैदर करनी है वो टू द एक्सटेंट पॉसिबल इट शुड बी एग्जाम ओरिएंटेड, दैट वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस की वी ट्राई टू लुक एट मैथमेटिक्स, it can be of +2 level, it can be dealing with say +2 non-medical student, this can be linked with a CAT, this can be linked with a bank PO। लेकिन आपके केस में क्या होता है कि एग्जाम में जो मैथमेटिक्स है इतना टफ नहीं है, वो इजी है, दैट वे इट इज इंपॉर्टेंट। देन जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है अगेन वी कैन सी टू इट, तो इन्वायरमेंट में भी क्या होता है कि वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक कंसेप्ट, कि हमारे एसडीजी क्या होते हैं, एमडीजी क्या होते हैं, तो हमने बुक में कुछ एग्जांपल है वो भी लिए हुए हैं। देन वी मूव टू कि पॉल्यूशन क्या होती है, देन हैजर्ड्स क्या होते हैं लाइकवाइज, या इसमें जो लेटेस्ट जो प्रोटोकॉल्स हैं लाइक कि जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन डेल्ट विद। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं तो दे विल टेल अस कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, या जो प्रेजेंट सीन है वो क्या है, या उसमें जियो पॉलिटिकल सीन्स है वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कि वाई द नेशंस दे हैव द स्ट्रेटजीज प्रायोरिटीज, तो उनको वो कैसे हैंडल करते हैं लाइकवाइज। तो वी आर गोइंग टू लुक एट ईच एंड एवरीथिंग। जो हायर एजुकेशन का टॉपिक है अगेन वी हैव टू लुक एट इट। इसमें क्या होता है कि वी आर स्टार्टिंग विद द एंशिएंट पार्ट, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एजुकेशन, देन वी सी कि व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, कि उसमें कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं, या व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे बुक में कवर किए हुए हैं। तो दैट वे एक जस्ट एक मैंने जनरल सा आइडिया दिया हुआ है आपको एज पर माई लिटल एक्सपीरियंस कि हाउ टू गो अबाउट। इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं होना चाहिए, कि आपने कुछ शायद ट्रबल आ गई दिस दैट है, तो आपने जो कॉन्फिडेंस है दैट मस्ट बी मेंटेन्ड। उसके लिए कहते हैं हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज अ डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि नो वन कैन डिटरमाइनेशन, तो आप में ये होना चाहिए कि यू हैव टू डू, ठीक है। लेकिन ये होता है कि एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ। तो अपने जो बैलेंसिंग है दैट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, तो वो जो अप्रोच है वो अपने अडॉप्ट करनी है। तो ये एक मेरा आपको सिंपल सा एक मैसेज है, तो ये आपने एंड एक जो अल्टीमेट मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ, कीपिंग इन व्यू एवरीथिंग, कि पेडेंसी शुड नॉट बी टेंडेंसी, कि आपने पेंडिंग नहीं रखना, यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क योर टीचर्स, यू हैव टू आस्क द इंस्टीट्यूशन आल्सो। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने क्लैरिफाई है वो करके चल रहा है। तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेडेंसी शुड नॉट बी टेंडेंसी। लेकिन पेडेंसी शुड नॉट बी टेंडेंसी का मीनिंग ये नहीं है कि यू हैव टू टेक एक्सेसिव टेंशन, ठीक है। एवरीथिंग इन द लाइफ इज सॉर्टेड आउट। उसमें आपके लिए जो पेशेंस का होना दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये एक जनरल सा मैं आपको आइडिया देना चाहता था अबाउट द होल एग्जाम। तो इसमें लाइक कि आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, इवन दे कैन बी इंटरटेन्ड, कि आपकी जो क्वेरीज है। Thank you, sir, for a very illuminating lecture. I'm sure it is going to motivate our students a lot. Sir has covered a wide range of topics, which is not only related to how to prepare the first paper only, but also sir has gone beyond our syllabus to kind of offer his perspective about the method of taking preparation or preparing yourself for the exam. I'm sure sir will be happy to take some questions from the students. তোমরা যদি বাংলাতেও বলো, I'll translate it for sir. No problem. So যদি কেউ বাংলায় প্রশ্ন করতে চাও অথবা ইংরেজিতে করতে চাও, I have maximum friends on my Facebook from the West Bengal. So they might be 50% of the total in India. okay. So I have special affection with the Bengal. So that way I find my association very pragmatic also. Okay, I try to motivate everyone ki how to go about in the life, this and that. Again, I have told you कि लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई हमने कैसे करना है, तो उसके लिए हमारी जो अप्रोच है दैट इज गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट वे। Exactly. So any questions from the students? You can write it in the chat box also. If you chat box এও লিখতে পারো তোমরা যদি তোমরা চাও, অথবা এখানে আস্ক আউটও করতে পারো। Sir, Yes. this is Tapaja Chakravarti. Yes. I am from Jadavpur University. I finished my master, graduation, post-graduation, all from Jadavpur University. I started doing the logical reasoning part first. I was wondering if, well, I have a book written by you for teaching aptitude and research methodology. But I was wondering if you have any book on logical reasoning. In case ki I try to say give you a good idea. Hello? Yes. In case ki I try to give you some practical idea. Ki in case ki I try to take the subject in a very general nature, so this can be taken as a wide subject. Ki we have to talk about ki what the Western says to us, ki what our ancient jo Indians hai, so what do they about the how to say deal with the subject likewise. So in case ki I try to look at the whole situation, so I have tried to put the concepts in a very systematic manner, ki which are completely say exam oriented. So in case ki I try to suggest something else, ki you can go for this and this book, so I think that will not be a justification ki you say get into that book and you are dealing with say each and every area. So that will lead you into a different direction. So that way I say put say maximum optimal efforts to say prepare say this chapter. So I think this can be taken as a very good book. And in case I try to take into certain examples also, ki people who have done say likewise ki JRF, and ultimately they have gone for the Indian Institute of Management likewise. So they specifically appreciate those books. This was really very helpful. I didn't get the name of the book. There was some connection problem. It's like you can go for any kind of book by, this can be by Kiran publication and all. So you can, Okay. But I'm not very specific say about those books, idea about those books. So you may have to try again. Okay. But in my case my book is completely exam oriented. So that way this book can be really very helpful to you. But at the same time you want to go for each and everything. What was the approach of the ancient people and all. So that way you can go for any kind of material.
क्यों इसमें लाइक ना कि देयर आर लॉट मैनी पॉसिबिलिटीज because in the logical reasoning so we will find say 5-6 people from the western say angle and western side, and there can be so many from the Indian side itself, so Sir, that may do that you depends. have a book on logical reasoning? Sorry, pardon me. Do you have a book on logical reasoning? No, I don't have any book. Even I was planning, but that may not serve any purpose actually. Okay. बस इसमें ये होता है कि आपको मैं एक प्रैक्टिकल सजेशन देता हूँ कि इन केस की यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम, तो उसमें जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं दे मस्ट बी अटेम्प्टेड. एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ. Okay, sir. Thank you, sir. ओके, मोस्ट वेलकम. Okay, any other question? Okay, if there is no question, then we can move on to सर yes, please. मुझे एक क्वेश्चन करना है. यस, नमस्ते सर. नमस्कार. मैं स्वागता मंडल हूँ. तो ओके, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो 10 यूनिट है उसको हम माने क्या एक सप्ताह में काउंट कर सकते हैं क्या? पर डे वेरियस सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? नहीं, इट्स entirely your decision कि if you're quite innovative कि you can go for the variety of the material, then you can go ahead with those things. So in case ki I talk about the teaching aptitude ki we have started from the philosophical things ki what should be the different approaches to the teaching, then we moved on to इसके objectives क्या होते हैं, mission क्या होता है कि उसमें like कि methods हैं वो कौन से होने चाहिए, देन इसमें लाइक कि उसके बाद कौन से इसमें असेसमेंट के लिए क्या जो टेक्निक्स हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें कौन से टाइप्स हैं. तो इसमें लाइक कि यू कैन फाइंड से वैरायटी ऑफ थिंग्स. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू इंटायरली कि इसको आपने डील कैसे करना है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करोगे तो आई मे ट्राई टू आंसर दिस इन ए बेटर मैनर कि यू वांट टू गो फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स. आई थिंक सो सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली. हाँ सर. ऐसा कुछ है? স্বাগতা, তোমার কোশ্চেনটা मैं আরেকবার স্যারকে यही বলো. पूछना चाहती हूँ. हाँ 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 हाँ. Okay. What is your subject in the post graduation? ओके You have told me. सर, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि संस्कृत. Okay. नहीं, इसमें यही है कि I told you in the say discussion also कि it is entirely up to you कि आपने कौन सा टॉपिक पिक करना है. लाइकवाइज तो उसमें ये होता है कि कुछ टॉपिक्स टफ है. मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल अप्रोच ओनली कि जो मैथमेटिक्स है या लॉजिकल रीजनिंग है, in case ki you feel ki these topics are really tough, so you want to deal with topics in the say beginning itself, so even that kind of option can be adopted that way. तो ये आपने डिसाइड करना है लाइकवाइज कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है. लेकिन मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि यू हैव टू गो फॉर द 100% एडेप्टेशन. तो उसमें क्या आपका कौन से टॉपिक है वो पहले आपने अडॉप्ट करने हैं, कौन से आप बाद में डील करना चाहते हो लाइकवाइज, तो वो अपने लेवल पे एक बार डिसाइड करो. एंड यू कैन कंसल्ट इंस्टीट्यूशन आल्सो कि हाउ आर दे गोइंग टू डील विद द टॉपिक्स. तो ये आपकी मतलब ये आपका बेसिकली है कि इसमें आपने कैसे अपने टॉपिक्स को डील करना है दैट वे. ओके सर, थैंक यू सर. Okay, any other question from the students? বাংলাতে জিজ্ঞেস করতে পারো. Okay, most welcome. Okay, I think there are no more questions. Okay, we can conduct some session in the future also to deal with the Thank questions. you. Sir, okay. Yeah, হ্যাঁ সংকল্প. Yes, Hello. yes. Hello, sir.
I am Sankalp Das, and I am from Ramakrishna, and I am studying in Ramakrishna Mission Vidya Mandira, and I am in third year. Okay. Honors third year. Mm-hmm. Sir, my question is how we build up our teaching aptitude. Is it only a practical way or both theory and practical? In case कि you are talking about the Yes. unit 1 कि उसमें like कि how to deal with it, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, या इन केस की वी टॉक अबाउट ऑल द टॉपिक्स. तो ये जो टॉपिक्स हैं लाइक कि इट डिपेंड्स कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स है वो कन्वीनियंट है. तो ये बेसिक एस्पेक्ट है कि आपकी क्या परसेप्शन है अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स. तो दैट कम्स इनटू पिक्चर. तो यही मतलब इसमें मैं कह सकता हूँ. बाकी जो आपके इंस्टीट्यूशन के जो टीचर्स हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू ऑन द 1-to-1 बेसिस आल्सो कि कौन सा टॉपिक है वो पहले पिक करना है, लाइकवाइज है. तो यू कैन गो विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स. आपका जो नाम है वो काफी अच्छा है, संकल्प. तो व्हाट डज इट मीन? डिटर्मिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड लक. यस. Sir, I have a funny question. Do you know any Bengali language? I will definitely learn parts of it. Okay, Sir, there is hope- another question by Lucy Manna. She has posted it in the chat box. She's writing Mhm. that I want to know about relationship with communication and teaching aptitude. Please. Okay. Again, that is a very good question. What is communication and what is, say, teaching aptitude, and how to establish the link between the two. उसमें ये होता है कि इन केस की वी ट्राई टू गो फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वी सी कि उसमें जो लर्निंग है दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट. कि फर्स्ट ऑन द वन साइड इट इज टीचिंग, एंड सेकंड साइड कि उसके जो रिसीवर्स होते हैं तो दे कैन बी टर्म्ड एज अ लर्नर. तो जो टीचर एंड लर्नर है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करना है, तो दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द कम्युनिकेशन. तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं एंड दे कैन बी अडॉप्टेड लाइकवाइज. तो ये सिंपल सा आंसर है इसका. Thank you, sir, for very patiently dealing Hello, with that hello. question. Oh, okay. There is another question. Yes, please be brief. Yes, yes. সৌমেন জিজ্ঞেস করো. Okay, so Pallav Halder is asking how much time should we invest for paper 1 and paper 2? Again, it depends upon you. कि in case कि you go for the timely preparation, कि you start study in the graduation or you start the study in the post graduation first year, so I think 1 to 2 hours are more than enough. But in case कि you have done say post graduation, then definitely you have to say devote some more time on the same things. In case I talk about in case you have taken admission in the MA first year, so then you get say 2 years. So that way you can spread the time कि you have to spend say less time. And in case you are doing कि after the completion of the post graduation, so definitely कि to cover the same topics, so you have to devote some more time. तो ये simple सा आंसर है वैसे कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुकी है, आई थिंक 3 to 4 hours per day are more than enough. 3 hours. So this can be taken as a standard. Okay, so there is another question by Ananya Mondol. I think you have already answered it in the previous question. She's asking that, sir, I am pursuing B.Ed now after Masters. It's really very hard for me to balance with B.Ed and paper 1 and paper 2. Can you suggest me how much time should be given for preparing paper 1? In case you are doing say B.Ed, then the things actually becomes very easy for you. In case you talk about teaching aptitude, so many topics and they are directly linked with the education. Then research aptitude, this can again be taken as part and parcel of the education. Communication again part of it. Then we talk about say comprehension likewise. So we can see कि so many topics they are directly linked. तो आपकी जो preparation है rather it should get say easier, not so tough. As per my own opinion, कि उसमें tough नहीं होना चाहिए, आपके लिए वो easy होना चाहिए.
Yes, sir, it's not tough for me, but what I am actually trying to say that it's really very hard for me to pass to give time for paper one 3 hours per day or more than that. That's why I'm asking how much time should I give to it? Yes, इन दैट so केस इट डिपेंड्स कि लाइकवाइज कि आपके जो डेली डेली टाइम शेड्यूल कैसे हैं लाइकवाइज ना, तो यू कैन से रिलाई ऑन दोस थिंग्स. लेकिन ये होता है कि इन केस की यू आर डूइंग से बीएड, तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू. तो आई थिंक यू कैन गो फॉर द टेम्पटेशन ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो, कि you have to attempt say daily 15-20 questions and you have to say cover say few topics likewise कि in case कि you are going to cover say teaching aptitude methods होते हैं, उसमें जैसे methods होते हैं तो you are going to focus on the methods. तो उसमें कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दिस कैन बी द एक्चुअल प्रैक्टिस. लेकिन आप ये नहीं, ये टाइम है वो डिवाइड नहीं करना एग्जैक्टली कि बीएड है तो बीएड में आपकी स्टडी है वो चली रही है, तो यू कैन ट्राई टू इन केस की यू आर डीलिंग विद द टीचिंग से मेथड्स in that way and you are concerned about the UGC NET exam, so you can pick say ki what kind of questions they can appear. So you should try to say establish a link between the two aspects. I think so. yes, sir. Okay, sir. Instead of feeling ki you have to be exclusively say devote time for the paper one, वो नहीं है. तो डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स तो यू कैन गो एट. लेकिन इसमें मेरी आपसे फिर एक सजेशन है कि इन केस की यू आर गोइंग टू डिवोट ओनली 1 hour 2 hour ऑन द पेपर वन, तो उसमें जो इसके टफ टॉपिक्स हैं उनको भी आप हैंडल करो साथ के साथ ही. इन केस की आई ट्राई टू लुक एट योर होल प्रोफाइल, तो उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है दैट कैन बी ए चैलेंज फॉर यू, तो उसको आपने साइमल्टेनियसली है वो हैंडल करना है. जैसे मैथमेटिक्स है तो उसको भी आपने उसके जो क्वेश्चंस हैं दे मस्ट बी अटेम्प्टेड, लेकिन वो क्वेश्चन इतने टफ होते नहीं है कि दे शुड बी टेकन एज ए वेरी बिग चैलेंज. उसमें क्या होता है कि इन केस की आई टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, द प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. Okay, Sir, I am Thank you Apurna so much, Mondal. sir. Thank you so much. It is only a general suggestion. Sir, I am Okay. Apurna Mondal. Sir, I have a question. I am continue MSc in Geography. How I prepared paper 1 and paper 2. Okay. Okay. In case ki you are doing geography, तो I think you can deal with each and every topic. मैथमेटिक्स है या इन्वायरमेंट का टॉपिक है लाइकवाइज, तो यू कैन डील, उसमें कोई ट्रबल नहीं आएगी. एंड जो हमने बुक में अच्छा पॉइंट ये रखा हुआ है कि जैसे रिसर्च का टॉपिक है, आई एम टेकिंग जस्ट वन एग्जांपल, तो उसमें जितने भी उसके मेन एलिमेंट्स हैं दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ, कि जैसे पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, तो उसमें मैंने स्पेशली डिस्क्राइब किया हुआ है. तो हाउ दिस काइंड ऑफ डिस्कशन कैन हेल्प यू, कि उसकी जो कैटेगराइजेशन है हाउ दैट कैन बी डन. तो बुक है उसमें हमने जो उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इवन दे हैव बीन गिवन. तो इसमें मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है इन केस की यू गेट से हाफ एन आवर ड्यूरिंग द फुल डे, तो इवन की वाइल से स्टडिंग से एमए ज्योग्राफी, तो यू कैन ट्राई टू डिवोट से मैक्सिमम टाइम. इसमें मेरी एक ये भी सजेशन है कि इन केस की यू आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज, तो उसमें अब जो ग्रुप्स हैं तो दे शुड बी मेड. आपको आइडेंटिफाई करना है कि 3-4-5 स्टूडेंट हैं तो दे माइट बी इंटरेस्टेड इन द यूजीसी नेट एग्जाम, तो उसमें जो ग्रुप प्रिपरेशन है इवन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. सेकेंड है जो टीचर्स हैं इवन दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन ए बिग मैनर. तो जो ग्रुपिज्म है, जैसे ग्रुप्स बनते हैं उसमें डिस्कशंस होती हैं कि आपको कोई ट्रबल आती है तो यू कैन आस्क द टीचर्स आल्सो, यू कैन आस्क सर्टेन पीपल फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ. तो आपको पता है कि द पर्सन इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो आपको उस टाइप की ट्रबल आती है तो यू कैन डिस्कस. इन केस की यू आर गुड एट आईसीटी पार्ट लाइकवाइज, तो आई एम जस्ट टेकिंग सर्टेन एग्जांपल्स ओनली. तो इसमें आपको काफी हेल्प मिलती है कि यू कैन से अटेम्प्ट से ऑल द टॉपिक्स. Sir, I have a question. Okay, sir. Thank you. Yes. Yes, sir. Yes. Sir, I am Songjukta Pal. I have cleared UGC NET for 3 times and West Bengal set also. Sir, my problem is Okay. I couldn't crack JRF due to 1 or 2 questions for every time. So if you please, and I am very much poor in communication, ICT part and EVS part, environmental science. So sir, if you please recommend something, or if you please suggest something how I can improve on these units. In case ki you talk about the communication, okay, तो this topic is again से linked with the teaching aptitude. आपने ये सोचना है कि how to deliver the contents in a class.
तो दैट वे वैसे इतना टफ नहीं है. इन केस की आई टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी टफ. तो यू कैन सीक से सेपरेट सजेशन आल्सो. तो आई कैन ट्राई टू ask you few questions कि उसमें आपको कहाँ पे ट्रबल आ रही है, लाइक ऐसा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन से क्वालिफाइड नेट एग्जाम थ्राइस एंड सेट आल्सो. तो उसमें आपको इतनी ट्रबल आनी नहीं चाहिए एज पर माय ओन नॉलेज. तो इन केस की आपके कोई स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं उसमें कि कौन सा टॉपिक है जिसको आप कर नहीं पाते, तो यू कैन टेल मी दोस थिंग्स Communication, I आल्सो. have no problem. Communication, it's okay. I am saying information communication means ICT. आईसीटी में तो ये होता है कि उसमें लाइक जो इन केस के टॉक अबाउट द बुक, तो मेरी आपको ये भी एक सजेशन है कि एक तो सिंगल सोर्स पे आपने रिलाई नहीं करना. मैं ये नहीं आपको कह रहा था कि कह नहीं रहा कि यू हैव टू गो फॉर माय बुक ओनली. तो एक तो ये होता है कि आपने एक सिंगल सोर्स है, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि इनके केस के टॉक अबाउट द मेमोरी पार्ट है या उसमें इंटरनेट है, तो वी कैन कंडक्ट स्पेशल लेक्चर्स ऑन दोस थिंग्स एट अ लेटर स्टेज. तो ये एस्पेक्ट है, दिस कैन बी डन. मतलब इतना वो टफ नहीं है जो आईसीटी का टॉपिक है. इवन आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द सर्टन टीचर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई हमने ये टॉपिक करना है, मेरे डाउट्स होते हैं, तो आई हैव टू गो टू एनी एक्सटेंट टू क्लैरिफाई माय डाउट्स. तो जब तक मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो आई विल नॉट बी पुटिंग से एनीथिंग इन द बुक. तो ये एस्पेक्ट है, ये मैं वैसे इन जनरल मान के चलता हूँ कि दिस कैन बी अडॉप्टेड इन एवरी वंस केस. क्योंकि उसमें भी यू कैन सी कि उसमें 10 यूनिट्स हैं लाइक वाइज, तो वी कैन बी इन ट्रबल एट वन पॉइंट और द अनदर. तो ये अप्रोच है, ये आप अडॉप्ट कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग से परटर्ब्ड कि भाई ये टॉपिक मेरे को आता नहीं है या मैं इसमें डिस्टर्ब, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. यू कैन डील से विद ईच एंड एवरीथिंग. Thank you, sir. Thank you so much. मोस्ट वेलकम. Okay, thank you, sir. Yeah, Sato, please. With your permission, Yes, yes. can I share our courses in our regional languages for 1 or 2 minutes, please? I just want to share. Sorry, I could not get you. What are you saying? Sir, I just want to tell the students about our courses in our regional languages. So can you give some? Sure. Yeah. Sure. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তো যারা আছো আমি তাদের বলছি, মানে আমরা অনেকগুলো কোর্স চালাচ্ছি। আগে শুধুমাত্র ইতিহাস চলতো, তো এখন শিক্ষা বিজ্ঞান মানে এডুকেশন, সোশিওলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইংলিশ, এডুকেশন, সংস্কৃত এবং হিস্ট্রি, এই কোর্সগুলো চলছে। এবং কোর্সের ফি আমি দেখবে চ্যাট বক্সে তোমাদের লিখে দিয়েছি। তো তোমরা যদি ভর্তি হতে চাও, নাম্বারও দেওয়া আছে, তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করো, কেমন? আর জেনারেল পেপারের জন্য 3000 টাকার কোর্স ফি। আমাদের মাসে সপ্তাহে 3টে করে ক্লাস হয়, মাসে 12টা ক্লাস, এবং রেগুলার মক টেস্ট নেওয়া হয়। এবং যারা পড়াচ্ছেন সবাই নেট JRF কোয়ালিফাইড এবং বিভিন্ন জায়গায় পিএইচডি করছেন বা বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাকাল্টি। তো তোমরা যারা কোচিং ইনস্টিটিউশনে খোঁজ করছো অ্যাট ভেরি মিনিমাল প্রাইসেস, সো তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। এবং কারো যদি ফিনান্সিয়াল কোনো প্রবলেম থাকে, টাকা পয়সার জন্য পড়তে পারছো না বা কোনো সমস্যা হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো, আমরা ভেবে দেখবো, ঠিক আছে? এবং শুধু সাবজেক্ট পড়তে চাইলে 4000 টাকা, সাবজেক্ট উইথ ফার্স্ট পেপার পড়তে চাইলে 5500 টাকা, এবং ফর ফার্স্ট পেপার 3000 টাকা। এই হচ্ছে কোর্স ফি এবং স্ট্রাকচার। এবং কি কি সাবজেক্ট আমরা এবছর আমরা রিভিল করেছি বা ইন্ট্রোডিউস করেছি সেটা আরেকবার বলে দিই: এডুকেশন, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশিওলজি অ্যান্ড ইংলিশ। ওকে, তো তোমরা নাম্বার দেওয়া আছে, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করো, কেমন? হ্যালো ইয়েস সোমেন। স্যার, আপকামিং এক্সামগুলোতে এই যে আপনার নেট সেটে মানে স্যার এই টিচিং রিসার্চ থেকে যে আপনার যাচ্ছে না। আচ্ছা, তোমার কথা আমরা কিভাবে নেব যদি একটু বলে দেন। তোমার কথা গেল না আলটিমেটলি। সো আমাকে ঋতিকদা, আই থিংক ইয়েস। শোনা, তোমার কোয়েশ্চেনটা শোনা যায়নি, তুমি যদি আরেকবার একটু রিপিট করো খুব সংক্ষেপে। I think he has left.
So I Okay, think thank you. in our Okay, I'll conclude by thanking everyone. Yes, Lenin, please. Lenin. Sir, myself, Lenin Akhtar, sir. I have one question. Like in first paper, like there are so many topics that are interrelated with each other. Like ICT in governance, ICT in teaching aptitude, ICT in research. That so, sir, how can we relate these topics with each other? Like it is that if we relate it with each other, then it is very easy to like study, sir. So, sir, how can we relate each other? Definitely, it's a very good question. This can be taken as a very relevant question कि how to drill the same topic ICT is coming into each and every area. तो it depends कि how much say confidence do you get. तो ये आपका क्वेश्चन काफी रेलिवेंट है. इवन वी हैव टू फेस ए लॉट मैनी इश्यूज कि हमने बुक में उसको लिखना है. तो likewise, but in my case, so I have taken a very general idea about those things कि how this can be applied in the research and likewise. तो ये topics हैं. So certain things they come with the practice only. कि once you make say you are doing say actual research, so then you get say definitely a broader idea about all these things. But in case ki we have to put the same thing in the book, so we have to take into account ki we have to go only for ki which are say exam oriented. So that way this can be taken as a very general approach. और आपकी जो क्वेश्चन है वो काफी रेलिवेंट है कि हाउ टू गो अबाउट. तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग सम कोर्स. तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि यू हैव टू गो इनटू ईच एंड एवरी डायरेक्शन. तो मेरी ये एक आपको जनरल सी सजेशन है कि अभी तो जो एग्जाम आपने देना है उसके अकॉर्डिंग यू ट्राई टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग. तो एक जनरल सी आपको सजेशन दे रहा हूँ इन दिस केस आल्सो. Okay. Does anyone has any question? Okay, thank you, sir. Okay, most welcome. Santosh, yes, please ask your question. Sir, can we take 2 more questions? Yes, definitely. Okay, Santosh, please ask your question. नमस्ते सर. नमस्कार. मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर. ओके, रियली गुड. मेरा मास्टर्स हिस्ट्री से है. ओके. जादवपुर यूनिवर्सिटी. ओके. मेरा क्वेश्चन है आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्वपूर्ण है मैंने पेपर 1 की तैयारी के लिए? नहीं, अगेन से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि in case ki you try to go for the previous year questions, so you get a lot of confidence ki what is the exam pattern, and you can try to identify the questions also ki in case ki we say get say one question, so there are 4 choice. So from the choices itself, so you try to apply your mind ki usko analyze आपने करना है. तो you get a number of ideas. मतलब उसमें आपको काफी qualitative ideas हैं, they get into your mind कि in the future say कि this type of question can again be asked. So that is a benefit of going into the previous year questions. तो आपको ये वाला benefit मिल जाता है उसमें. In case कि you go to exam and without any knowledge कि उसमें exam pattern क्या है, तो आपका I think कि there can be some sort of issue with those things. হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ, Yes, সৌমেন বলো, খুব সংক্ষেপে বলো তোমার প্রশ্ন. yes. ঋত্বিকদা, অনুপ্রিয়াঙ্কা চ্যাট বক্স একটা প্রশ্ন করেছে, ওটা একটু বল. আচ্ছা, there is another question by Anupriyanka Desh. He is asking how we apply ICT in teaching methods. Again, I can say to it कि in case कि you try to take into account say any type of delivery system, so ICT is going to play a very important role. In case कि we try to look at the policies which have been adopted by the UGC, so they have gone for the blended approach. So we have to see कि 50% material that is going into the system through the conventional education, likewise कि manual जिसको हम कह सकते हैं, and जो 50% है, मैं just एक idea ले रहा हूँ, it may not be specifically mentioned also कि some topics they have to be delivered through the ICT modes. So that way we can see to it कि ICT is going to play a very important role that way. Thank you, sir. And we can talk about the artificial intelligence also.
तो उसमें भी वी कैन सी टू इट कि लॉट मैनी थिंग्स दे हैव टू बी डिलीवर टू द स्टूडेंट थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइकवाइज। तो उसमें आपकी अगर इनोवेटिवनेस ज्यादा है तो यू कैन गो फॉर द एंड नंबर ऑफ द क्वेरीज कि टिल द थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड एट द सेम टाइम यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द टीचर्स। तो मेरी इसमें यही आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको यू हैव टू डू से ईच एंड एवरी टॉपिक, दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आईसीटी इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, तो इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। उसमें मेमोरी क्या होती है लाइकवाइज, तो एवरी डे यू गेट से सम काइंड ऑफ इश्यू दैट इज लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी। इवन इन केस की आई हैव टू राइट बुक, तो आई हैव टू टेक से हेल्प फ्रॉम द नंबर ऑफ टूल्स कि हाउ टू पुट देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर so that I am able to get a say good material. In the research also, ICT is going to help you कि how to make questionnaires, उसकी अपने शेड्यूलिंग है वो कैसे करनी है लाइकवाइज। तो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, उसमें आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, अगेन यू हैव टू गो टू दोस थिंग्स। Thank you, sir, for being very patient with the questions and taking your time to answer the questions from the students. I think it will be very beneficial for all the students who are attending today's session. And I thank you all for joining us this evening to hear from Professor Madan. And I also hope that in future we will get Professor Madan amongst us in another session. With that, I would like to say thank you, everyone, and we end today's program here. Now, And yes, my best wishes are with the students. They must work hard and they have to work so smartly also, and they are able to qualify the exam in the not just net exam, but ultimate जो target है वो क्या होना चाहिए, that should be the JRF exam. So they can do in case कि they do the things in a planned manner. Thank you, sir. Prosenjit, our founder member, Prosenjit sir is here among us. Prosenjit, would you like to say something? Okay, I think he has left. Okay, so with that note, we end our session here today. We hope that we will meet again in future. And like sir has said that I, on behalf of the Prastuti Academy, wish you all the best for your coming exams. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone.